got it from the seal. चलिए जी Amsha. Tell me. Vibhav Bhushan. Yes, sir. Please switch on your video. Yes, sir. Please wait a minute. Welcome all of you. Today we are going to learn about the database. Before I proceed, I will like that all of you please switch on your video. I will like that all of you please keep your videos switch on. So we will learn about database, right? So let's start our topic. We'll learn what is database. So in my previous class, I have told you what is database. What is database? Database is a record keeping system. In my previous class only I have taught you that it is a record keeping system, right? So let's start about the database. We will learn about the database. Database is a record keeping system. What is database? Database is a record keeping system, right? So here we see database. Database term has been derived from the two words. You can see here the two words can be here. One part is that is data. First part is data and second part is base. Second part is base. Data plus base. What is data? We will see what is data. This is collection of raw facts and figure. That is called data. Collection of raw facts and figure. This is called data. So first we will learn about data. So we see here what is data. Data. Okay. So let's see. Data. It is collection of raw facts and figure. Raw facts and figure. Okay, it is collection of raw facts and figure. Okay, so basically database, data is collection of raw facts and figure, and database altogether, if we see altogether, database is an application system which is used to store the data, which is used to next. I hope you have understood about the database. What is database? Next to it, when we move, next, database is a collection of organized information and record. What is database? Database is a collection of organized data. Database is a collection of organized data. It is collection of organized data. Information. Other thing is information. The second thing is information, and third one it is record. Records. We will see each term one by one. The first we have seen that. The first one we have seen what is data. We have seen what is data. Data is collection of raw facts and figure. Right. What is this? This is collection of raw facts and figure. Raw facts and figure. Okay. This is collection of raw facts and figure, right? Now let's move toward the information. What is information? It is processed data. Processed data is called processed. In one word, it is processed data, right? Processed data.
process data. Process data. What is information? Information is a processed data, right? It is a processed data. No, not only processed data. Processed data which gives us, which resolve our uncertainty, which give us some meaning. Processed data which give us meaning, which provide insight, which provide insight, जो हमें अकल देता है, ठीक है, जो हमें कुछ अकल दिया। जैसे मान लो अभी जो है क्लास टेस्ट हुआ, और क्लास टेस्ट में कुछ बच्चे बहुत अच्छा किए, कुछ बच्चे बहुत खराब किए। जब हम सबको जोड़े, एवरेज निकाले, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 45 मार्क्स आ रहा है एवरेज। इसका मतलब है कि हम बहुत अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, ये मुझे बुद्धि मिला, ये मुझे इनसाइट मिला, ठीक है, विच प्रोवाइड अस इनसाइट, ठीक है। तो डेटा, इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड, आई होप इट इज क्लियर टू यू, you can take it down. Moving to next, database is a collection of other definitions about the database. We can write database is a collection of records. It is collection of records in the form of tables. Okay, now what is purpose of database? Database is a information that person need. This is all about the database. What is importance of database, right? So topic we can say why database is important. Why database is important? So first we will have to learn why information is important. Why information is important? Information give us insight. Information से हमें बुद्धि मिलता है, ठीक है। बुद्धि कहीं जो है वो दुकान में नहीं मिलता है। बुद्धि ऐसी चीज है कि वो कोई दुकान में नहीं मिलता है, वो ठेला पर नहीं मिलता है, ठीक है। बुद्धि कहाँ से आता है? बुद्धि आती है जब हम डाटा को प्रोसेस, जब हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। अभी हमें इंफॉर्मेशन मिल गया कि इस क्लास में कोई एक लड़का वो आकर बदमाशी करने वाला है, मैं अलर्ट हो जाऊंगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन मिला। Now what is the, from where we get the information? Information, this is process data is called information. After processing of information we get processing of data, we get the information. Next we have to देखो क्या है कि डाटा क्यों जरूरी है। डाटा से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, इंफॉर्मेशन से हमें बुद्धि मिलता है, और बुद्धि से हम कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक है। एक हम लोग एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। लेट्स कम टुवर्ड्स एन एग्जांपल, ठीक है। वी विल सी वन ऑफ द एग्जांपल हियर, दैट सपोज वी हैव कंडक्टेड अ क्लास टेस्ट, राइट। वी हैव कंडक्टेड अ क्लास टेस्ट, हमने क्लास टेस्ट लिया, ठीक है। क्या लिया? क्लास टेस्ट लिया। इस क्लास टेस्ट का हमारा मार्क्स आया आउट ऑफ 50, 25/50, 10/50, 30/50, 35/50, 45/50, ठीक है। देन वी हैव गॉट 5/50, 15/50। तो नाउ व्हाट आर द, दिस इज, व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोसेस डेटा। व्हाट इज दिस? दिस इज raw facts. What is this? This is data. ये क्या है? डाटा है। What is this? This is data. This is data. Now when we process it, we will come to some information. हम यहाँ पर average निकाल सकते हैं। We can find out the average is equal to sum of all marks by number of student, right? तो we come to the average. हमें एवरेज मिला। एक इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलेगा जब इसको प्रोसेस करेंगे? तो एवरेज मिलेगा। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिल जाएगा। तीसरा इंफॉर्मेशन क्या मिलेगा? मिनिमम मिल जाएगा। फोर्थ इंफॉर्मेशन क्या मिल सकता है? बिलो एवरेज कितने लोग हैं, ठीक है, बिलो एवरेज कितने हैं। फिफ्थ इंफॉर्मेशन वी कैन कलेक्ट outstanding. So what we have seen, when we have processed the data, we have got the variety of information. जब हमने डेटा को प्रोसेस किया तो variety of informations मिलता है, ठीक है। जब अब बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला, तो एक टीचर होने के नाते मान लो हमें इंफॉर्मेशन मिला कि मेरे क्लास का एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है। एवरेज मार्क्स आ रहा है 35%,
ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए, चैप्टर छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए या फिर हमें और पढ़ाना चाहिए? ये मेरी बुद्धि, मुझे बुद्धि आएगा, मेरा बुद्धि कहेगा कि नहीं भाई नंबर कम है, थोड़ा मेहनत रिवीजन कराना पड़ेगा, ये बुद्धि मिला, हमने एक डिसीजन लिया। तो भाई देखो आज का जमाना जो है वो आईटी का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। क्यों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है? क्योंकि आज के डेट में जितना सारा डिसीजन लिया जा रहा है वो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। अगर इंफॉर्मेशन गलत हुआ तो तुम्हारा डिसीजन गलत हो जाएगा, डिसीजन गलत हो जाएगा तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, घाटे का सौदा हो जाएगा। ठीक है, तो if the decision is wrong, if the decision is wrong, if decision is wrong, definitely you will lead to loss. तो डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए। डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? डेटा चाहिए। डेटा को कहाँ रखेंगे? पोटली में बांध के, पर्स में? कहाँ रखेंगे? कोई बोलता काहे नहीं है जी, कहाँ रखेंगे डाटा को? एनीबॉडी? पैसा अगर बहुत इंपॉर्टेंट है डेटाबेस। money is very important for you. Please switch on your video. Please switch on your video. Everybody, switch on your video. Be interactive with me. I like interaction in my class. अच्छा ये बताओ, अनुपम आनंद नाम का जो लड़का है, अनम्यूट कर लो अपने आप को, मैं सबको अनम्यूट रखता हूँ। मेरे क्लास में कोई म्यूट नहीं रहता है, मेरे क्लास में कोई म्यूट नहीं रहता है, नॉनसेंस तो मेरे क्लास में होगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए हम डरते नहीं है। हमें बताओ कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, अनुपम आनंद, अनुपम आनंद? यस सर। पैसा Yes, बहुत sir. इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए Yes, क्या sir. इंपॉर्टेंट है? प्रिया कुमारी? सर इंफॉर्मेशन। अरे इंफॉर्मेशन तो बात हम लोग देखेंगे। प्रिया तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तुम किस किस चीज की तवज्जो देती हो ज्यादा? अरे घर में चावल दाल बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना, चावल और दाल Yes, बहुत sir. इंपॉर्टेंट होगा, तो कैसे रखे हो उसको? हाउ यू हैव प्रिजर्व्ड इट? कैसे रखे हो उसको? Sir, in a container. In a container. Appropriate answer you have given. Priyam Raj? Priyam Raj? Yes, sir. Oh, what is precious for you? तुम्हारे लिए कीमती क्या है बताओ? Sir, option. बहुत सारा चीज तुम्हारे लिए कीमती हो सकता है। मान लो तुम्हारे लिए कीमती होगा और सोने की अंगूठी, तो कहाँ रखे हो उसको? माथा पे रखते हो? ऐसे टांग के No, घूमते रहते हो? कहीं ले जाना है तो कैसे ले जाते हो? बढ़िया से प्रिजर्व करके ले जाते होगे। Yes, sir. हाँ, समझ में आ रहा है? इसको देख रहे हो? ये Yes, क्या sir. है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? Wallet. वॉलेट है। इसमें क्या रहता है? इसमें क्या रहता है? पैसा. बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ये। तो हम इसको कितना सहेज के रखे हैं, देखो पर्स में डाल के रखते हैं। ठीक है, तो जो चीज इंपॉर्टेंट Yes. होता है उसको हम सहेज कर रखते हैं। तो डाटा भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डाटा को पर्स में रखेंगे, डाटा को कंटेनर में Database. रखेंगे। सर कहाँ रखेंगे डाटा को? Database. डाटाबेस में रखेंगे। ठीक है, डेटाबेस इज अ कंटेनर in which we store the information. I hope you got it. I hope you have understood it. गिरीश चंद्रा, कुमारी सोनल, वीडियो सभी ऑन रखेंगे। ठीक है, मेरे क्लास में वीडियो ऑन रखा करो भाई। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब डेटाबेस का पर्पस तो समझ में आ गया होगा कि डेटाबेस क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हमारा दो तरह का डेटाबेस होता है। पहला कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। दूसरा होता है फ्री फॉर्म डेटाबेस। स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस मतलब एक तरीका बना हुआ है, एक तरीका है डाटा को रखने का। देयर इज अ वे, एक तरीका है। और एक हमारा क्या है, जैसे मान लो फ्री फॉर्म ऑफ डेटाबेस। तो फ्री फॉर्म ऑफ डेटाबेस का तुमको हम एग्जांपल दिखा देते हैं, जरा देखो देखो। ये देखो फ्री फॉर्म ऑफ डेटाबेस, देखो यहाँ से निकल गया। अब देखो ये मेरा क्या हुआ, अच्छा इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, ऐसे हम कागज रखे हुए रहते हैं। कोई बदमाशी किया, हम इसमें ऐसे नाम लिख के ऐसे पॉकेट में रख लेते हैं। तो ये हमारा कैसा है, फ्री फॉर्म डेटाबेस है।
ठीक है, फ्री फॉर्म ऑफ डेटाबेस। अब स्ट्रक्चर डेटाबेस एक तरीका बना हुआ है, हम रजिस्टर में लिखेंगे, हम जो है कंप्यूटर में एक्सेल में डालेंगे, हम डेटाबेस में डालेंगे। तो हम दो तरह का हमारा तरीका है, एक होता है हमारा जैसे तैसे वाला व्यवस्था, और एक हमारा होता है वेल डिफाइंड अरेंजमेंट। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। दिस इज कॉल्ड structured database. Let's come toward the definition. It is called the structured data in which record or file or information is arranged in a uniform format. एक तरीके से हम रख रहे हैं, एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट है। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है फ्री फॉर्म डेटाबेस, जैसे मन किया वैसे रख लिए। जैसे अभी एक सिनेमा देखे होगा गंगा जल, तो गंगा जल में जो एसपी अमित कुमार जब एक थाने के इंस्पेक्शन में जाते हैं, तो जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो तेल मालिश करवाते रहते हैं, तब तक उनके चैम्बर में बैठ कर देखते हैं कि इसका एफआईआर रजिस्टर ही नहीं है। ठीक है, वो क्या देखे कि एफआईआर रजिस्टर ही नहीं है। ठीक है, पूछे भाई तुम्हारी एफआईआर रजिस्टर ही नहीं है, कैसे काम करते हो? कहा कि जी नहीं सर, हम सब टाइम लिखते हैं सर, इधर से निकाल के दिखाया तो वो इधर से निकाल के दिखाया। तो ये क्या है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री फॉर्म डेटाबेस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री फॉर्म डेटाबेस। Structured Free form database database. where there is information, data is arranged in some format. एक फॉर्मेट में, एक तरीके से, एक व्यवस्था से रखा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। दूसरा हमारा क्या Structured है? database. फ्री फॉर्म डेटाबेस, जैसे तैसे रख लिए, जैसे तैसे रख लिए। ठीक है, I hope you got it. Difference between the structured database, structured database. I hope it is clear to you. Next, we should Yes, sir. move operational database, analytical database. कुछ डेटा operational database और analytical database को समझोगे दिमाग खोलकर। ठीक है, ऑपरेशनल डेटाबेस, ऑपरेशन मतलब काम करने वाला, ऑपरेशन डेटाबेस। दिस इज व्हाट इट इज रिटन हियर, ऑपरेशनल डेटाबेस। ऑपरेशनल, जिस पर हम काम करते हैं। ठीक है, जो डेटाबेस पर हम रोज काम करते हैं। ठीक है, उसमें हम रिकॉर्ड को डाले, रिकॉर्ड को डिलीट किए, चेंज किए, अपडेट किए, मतलब वी डू वर्क डेली, वी डू वर्क रेगुलरली। ठीक है, रेगुलरली, जिस पर हम रोज काम करते हैं। इसमें डाटा नया नया आता है, डाटा इज न्यू, यहाँ डाटा नया नया होता है। ठीक है, जबकि एनालिटिकल डेटा, दूसरा हमारा टर्म यहाँ क्या आ रहा है बच्चों? यहाँ पर हमारा डाटा आता है एनालिटिकल, एनालिसिस, एनालिसिस से बना है एनालिटिकल, वेयर डेटा इज रेयरली मॉडिफाइड। देखो शब्द को देखोगे, यहाँ पर क्या लिखा है? रेयरली मॉडिफाइड। और हमने यहाँ पे क्या लिखा? न्यू। हम लोग क्या लिखे? न्यू। मतलब ऑपरेशनल डेटाबेस जिस पर हम रोज काम कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो गया? ऑपरेशनल डेटाबेस। और जिस डेटाबेस पर हम काम नहीं करते हैं, वो पुराना डेटा है, पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, उससे हम सिर्फ इंफॉर्मेशन निकालते हैं। दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल डेटाबेस। आई होप यू गॉट इट। ऑपरेशनल डेटाबेस और एनालिटिकल डेटाबेस समझ में आया? ऑपरेशनल डेटाबेस, Yes. बताओ प्रिया, क्या समझ में आया? ऑपरेशनल डेटाबेस जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल एक और हम देंगे, उसके पहले तुम बताओ कि तुम्हें क्या समझ में आया। प्रिया बोलो। Yes, sir. In operational database, we preserve database नो in नो in नो 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 नो, प्रिजर्व शब्द आ गया तो वो खत्म हो गया। ठीक है, प्रिजर्व शब्द ही नहीं बोलना है इसमें। ठीक है, हमारा ऑपरेशनल डेटाबेस का मतलब होगा जिस पर हम ऑपरेशन करते हैं, जिस पर हम काम करते हैं, जो डेली नया 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 होते रहता है, जो रोज चेंज होता है। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल, प्रिया, अभी एक मान लो यू आर द स्टूडेंट, चलो स्विच ऑन योर वीडियो एवरीबॉडी, टाइम एंड अगेन आई एम सेइंग कीप योर वीडियो स्विच ऑन, कीप योर वीडियो स्विच ऑन एवरीबॉडी, इट इज वेरी बैड। ठीक है, चलो ग्रेस चंद्रा, तुम्हारी सोनल, अच्छा यू हैव रेज योर हैंड, यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू स्पीक।
बोलो जी, अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो अपने आप को। Sir, can we say that data in operational database is read and write both, and in Yes, yes. analytical only read? Yes, 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 you are correct. You are correct. You are correct. तो ऑपरेशनल डेटाबेस ये जो है, इसमें हम रोज चेंज करते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारा आर्यन राज नाम का जो लड़का है, अभी तुम लोग का रजिस्ट्रेशन जब 9 क्लास में हुआ होगा तो बहुत सारे लोग आए होंगे कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, हमको चेंज करना है, चेंज करना है। अच्छा चलो चेंज हो जाएगा जी, ठीक है, कोई बात नहीं, चेंज हो जाएगा। सर हमारा कास्ट सर्टिफिकेट में जनरल लिखा हुआ है, सर इसको जरा ओबीसी करना है। सर मेरा ओबीसी लिखा हुआ है, इसको जनरल करना है। हम क्या कर रहे हैं, डेटा में रोज चेंज कर रहे हैं, अपने जरूरत के अनुसार हम चेंज कर रहे हैं। वी आर मेकिंग चेंज इन द डेटा एज पर द रिक्वायरमेंट। ये कौन सा डेटाबेस हो गया, इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेशनल डेटाबेस। क्या कहते हैं, ऑपरेशनल डेटाबेस। कुमारी सोनल कीप योर वीडियो ऑन, एकदम भगा देना चालू करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो हमारा तरीका है क्लास में वीडियो ऑन करके रहा करो। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, कौन हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। पीयूष अग्रवाल प्लीज, ठीक है। ऑपरेशनल डेटाबेस हमारा ये हो गया, ठीक है। अब मान लो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से छोड़कर चले गए, पास करके चले गए, उनका डाटा हमारे पास रह जाता है। तुम लोग 10th के बाद यहाँ आओगे कि ना आओगे, तुम लोग चले जाओगे तो फिर तुम्हारा डेटा हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। अब इस डेटा का हम क्या करेंगे, इस डेटा से हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि चलो कितनी लड़की हमारे यहाँ आती है। अच्छा 10th में इस साल इतना लड़की आया, इतना लड़का आया, इतना लड़की लोग जो है वो फर्स्ट डिवीजन लाया, इतना लड़की लाया, ठीक है। हाउ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज दोज हु हैव स्कोर्ड फर्स्ट डिवीजन मार्क्स दिस मच बॉय। तो हर साल से हम उसको एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं, उससे हम छुपा हुआ इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो ये हमारा कौन सा डेटाबेस हो गया, ये हमारा एनालिटिकल डेटाबेस हो गया। I hope you got it. Any problem in understanding the analytical database? Any problem? Next, when we move to the next, we have a structured database model. चलो ये हमारा hierarchical data model है, बस याद रखो नाम को, ये ज्यादा पढ़ना नहीं है। hierarchy होता है यहाँ पर, hierarchical data model, there is a term hierarchical data model, ठीक है। जैसे ये रूट हो गया, फिर ये चाइल्ड हो गया, फिर इसके सब चाइल्ड हो गया। डेटा को हम ऐसे जैसे अरेंज करते हैं। डेटा, इसका डेफिनेशन ये होगा बच्चों कि डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की। डेटा इज स्टोर्ड, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की, ठीक है। डेटा हमारा किस फॉर्म में स्टोर होता है, हायरार्की के फॉर्म में होता है। डेटा इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की। अब हायरार्किकल फॉर्म क्या होता है, जरा ये बताओ, कोई बता पाओगे, बोलो। डेटा इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ हायरार्किकल फॉर्म, इसका मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा? रेज योर हैंड, raise your hand where data is stored in the form of hierarchical form। चलो hierarchy का मतलब होता है, देखो यहाँ पर, जैसे ये देखो hierarchy है, here the father at the top, this is father, right, this is father, या हम इसको कहते हैं grandfather, इसको हम क्या कहते हैं, grandfather कहते हैं, ठीक है। the top hierarchy, grandfather, father, uncle, okay, this is also uncle, okay, and this is our siblings, हमारा ये हो गया। तो ये हमारा एक हायरार्की है। डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हायरार्किकल। तो एक हमारा डेटा मॉडल कौन सा होता है, हायरार्किकल डेटा मॉडल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा डेटा मॉडल हमारा होता है नेटवर्क डेटा मॉडल। डिटेल यू विल स्टडी इन क्लास 11, ये क्लास 11 में 12 में पढ़ने का है, ठीक है। नेटवर्क डेटा मॉडल, देखो दोनों में अंतर क्या है।
रूट हैज वन पेरेंट। देखो यहाँ पर क्या है, ये रूट एवरी चाइल्ड हैज वन पेरेंट। देखो ये चाइल्ड का एक पेरेंट है, ठीक है, इसका पेरेंट ये है, ठीक है, इसी प्रकार से इसका पेरेंट भी ये है, ठीक है। मतलब parent have many children, okay, parents can have many children, means one parent can have many children, right? The top level data is associated with the many data, ठीक है। तो ये हमारा डेटा मॉडल हायरार्किकल डेटा मॉडल है। जबकि नेटवर्क डेटा मॉडल में क्या होता है, ये थोड़ा हटकर है, हम लोग इसको देखेंगे। हियर एवरी चाइल्ड हैज मेनी पेरेंट्स, हम लोग इसमें क्या लिखते हैं, एवरी चाइल्ड हैज मेनी पेरेंट्स, एवरी चाइल्ड हैज मेनी पेरेंट्स। एवरी चाइल्ड है, सुनने में थोड़ा ये गजब लग रहा होगा, एवरी चाइल्ड हैज मेनी पेरेंट्स, राइट? you can see here this is one child, ये हमारा एक चाइल्ड है। देखो इसका पेरेंट ये है, इसका पेरेंट ये भी है, इसका पेरेंट ये भी है, ठीक है। तो नेटवर्क मॉडल वर डेवलप, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेटवर्क मॉडल इट अलाउ द एक्सेस ऑफ डेटा फ्रॉम एनी टेबल, ठीक है, ये सब आपस में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट वी हैव, अब आगे में आता है रिलेशनल डेटा मॉडल। इसको छोड़ दो, ये हमारे तुम लोग के लेवल का है नहीं, यहाँ से आ जाओ। डाटा, डाटा के बारे में हम पढ़ाए थे। इट इज डाटा, डाटा क्या है, डाटा का डेफिनेशन बताए थे। इट इज कलेक्शन ऑफ, इट इज कलेक्शन ऑफ, इट इज कलेक्शन ऑफ raw facts and figure, raw facts and figure, right? This is called data. Data क्या है, it is a number or value stored in database. Data is static because it remains same until modified. देखो यहाँ पर एक शब्द बोला गया है, क्या बोला गया है, static। static का मतलब क्या है कि जब तक डाटा को हम लोग प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। सो इट इज कॉल्ड स्टैटिक। जब तक उसको हम प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। डेटा इज थिंग टू बी प्रोसेस्ड। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन, प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। आई हैव टॉट यू। नाउ you will find this word again and again. What is this? This is null. क्या है ये? null, ठीक है, null। तो null is used to represent unknown value, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। null का मतलब बहुत सारे लोग जीरो समझ लेते हैं। null is not zero, null is not zero, null जीरो नहीं है, null जीरो नहीं है। null is not blank, null is not blank। तो भैया ना जीरो है ना ब्लैंक है, तो ये है क्या? ये एक ऐसा चीज है जिसको हम आज तक समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू, अननोन वैल्यू। जीरो तो एक वैल्यू न है जी, वैल्यू है, आगे में एक लगा देंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये तो जीरो इज अ वैल्यू, ब्लैंक इज a situation, but null is an undefined situation. This is called null. I hope all of you have understood it. null के बारे में समझ में आ गया होगा। null is a situation, right? So let's move ahead now. Table is a structure. Table क्या है? Table, the main structure of the relational database model, composed of field and record. देखो हम पहले भी बताए होंगे, अगर हम कहीं पढ़ाए होंगे, तो इसमें क्या होता है, फील्ड। सपोज आई एम ड्रॉइंग अ टेबल, मान लो मैं यहाँ पर एक टेबल ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। सपोज आई एम ड्रॉइंग अ टेबल लाइक दिस, ओके, लाइक दिस। सो हियर यू कैन फाइंड इट इज कलेक्शन ऑफ फील्ड। मान लो यहाँ पर हम लिखते हैं रोल नंबर, रोल नंबर। यहाँ पर लिखते हैं नेम,
ठीक है, यहाँ लिखा क्लास, यहाँ लिखा सेक्शन, यहाँ पर लिख दिया सेक्स, लड़का है कि लड़की है, रोल नंबर लिख दिया 1, नेम लिखा ए, क्लास लिख दिया 10, सेक्शन ए, सेक्स मेल, रोल नंबर 2 बी, 11, सेक्शन बी, मेल। सो व्हाट इज दिस? दिस इज, देखो यहाँ पर 3 सी 12 ए एफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बच्चों कि ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज टेबल, एज ए होल हम इसको क्या कहेंगे? एज ए होल इट इज अ टेबल, एज ए होल इट इज टेबल, इसका नाम क्या है? टेबल। इसमें 2 कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट हमारा ये वाला हो गया, ये वाला कंपोनेंट, इसको हम क्या कहते हैं? कॉलम। इसको हम क्या कहे? कॉलम्स। क्या कहते हैं? कॉलम्स, ठीक है। दूसरा देखो हमारा कंपोनेंट, दूसरा हमारा कंपोनेंट हमारा हो जाएगा, ये कॉलम तो दिखा दिया, कॉलम किसको कहते हैं? दूसरा हमारा कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको हम क्या कहते हैं? रिकॉर्ड। वी कॉल इट रिकॉर्ड। तो देखो इसी बात को यहाँ पर समझाया हुआ है, ठीक है, इसी बात को यहाँ पर अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। इट इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ RDBMS एंड इट इज कंपोज ऑफ, बना हुआ किस चीज से होता है? टेबल। टेबल बना हुआ होता है रो और कॉलम से। रो को हम लोग कहे, देखो यहाँ पर ये रो है, हम ऐसे लिख के दिखा दिए, ये रो हो गया, ये रो हो गया, देयर आर 3 रोज। अब ये जो हो गया हमारा कॉलम हो गया, कॉलम, ये भी हमारा एक कॉलम हो गया। इस कॉलम का नाम देखो रोल नंबर है, इस कॉलम का नाम हमारा नेम है, इस कॉलम का नाम क्लास है, इसका नाम सेक्शन है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। तो ये हमारा हो गया, आई होप यू गॉट इट। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया टेबल किसको कहते हैं? आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब समझ में भी, अब चलो ये टाइम हमारा समाप्त होने को है। आई विल गिव यू द होमवर्क, यू विल डू इट, ओके, यू विल डू इट। आज स्नैप होमवर्क में होमवर्क देंगे, इसको आप जरूर बनाएंगे, छोटा सा सवाल देंगे, उसको जरूर बनाओगे, ठीक है। आई होप यू लाइक्ड इट। एनी प्रॉब्लम? Priya, can you tell me, No, sir. can you define what is database? Sir, database is a collection of organized data, information and records. Okay. Now my question is, can we say that database is a container that store the tables? Yes, sir, we can say that. Can we say table is a container that contains data in the form of row and column? Yes, sir. Hello, तुम बताओ आर्यन राज। Yes, sir. आर्यन राज, what is the structure of column? Is it vertical or horizontal? Horizontal, vertical columns. Vertical columns. Okay, चलो ठीक है, time is going to be up. Okay, take care. I will give you the homework. You will do the homework, right? Take care. Goodbye.